Hello everyone, welcome to economics class. Dear students, today we will discuss how weighted index numbers are calculated. As we have already studied that index numbers are constructed in two ways. One is weighted and second is unweighted. In case of unweighted index numbers, no importance is given to weights, that is the quantity. But when we are to discuss about the weighted index numbers, due consideration is given to the quantity or the weights. Dear students, as we have already studied that there are four components in index numbers. One is base year price, base year quantity, popularly known as P0, Q0, and current year price, current year quantity, that is P1 and Q1. Today we will discuss how these quantities or weights are used while calculating weighted index numbers. We have different methods of calculating weighted index numbers. Let's start the topic. What is weighted index number? In general, all the commodities cannot be given equal importance, so we can assign weights to each commodity according to their importance, and the index number computed from these weights are called as weighted index number. Dear students, in the previous videos we have already studied that the quantity purchased of different commodities varies from person to person, from family to family. हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जिन फैमिलीज़ में इन्फेंट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट या उन टॉयज़ की या उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है जो बच्चे यूज़ करते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन milk products or the toys or the goods consumed by infants will be more as compared to a family having elderly people, or comparatively uh, the student or the children, the school going or the college going children. वहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट की या सैरेलिक वगैरह की या टॉयज़ की डिमांड कंपैरेटिवली कम होगी, मतलब एक्सपेंडिचर उनका कम होगा. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, डिफरेंट वेट्स आर गिवन टू these expenditure on the basis of their importance. The weights can be production, consumption values. If W is the weight attached to a commodity, then the price index is given by sigma P1W by sigma P0W into 100. This is a basic formula where P1 is the current price, P0 is the base year price, W is the weight, then use the formula. ये आपको किसी भी कैटेगरी में हम इसको नहीं डाल रहे. दिस इज सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट इज वेटेड इंडेक्स नंबर. When weights are given, base year price is given and current year price is given. Now we will discuss about some more topics. Weighted index numbers. In this method, each variable is assigned a weight depending on its relative importance. Often the quantity or the volume of the commodity sold during the base year or some typical year may also be taken as the weight. या तो आपको सिंपल W गिवन होगा, दैट इज़ वेट, या फिर आपको Q0 और Q1 गिवन होंगे, या सिर्फ Q0 होगी या सिर्फ Q1 होगा, या फिर Q0 Q1 दोनों ही गिवन होंगे, और जिस भी मेथड को आप यूज़ करोगे आप उसी को यूज़ करोगे. अब हम यहाँ पर कुछ मेथड्स के बारे में स्टडी करें. सबसे पहला मेथड हम लेंगे लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. सेकेंड हम डिस्कस करेंगे पास्चेस इंडेक्स नंबर. बच्चे ये जो लेस्पियर मेथड होता है इसमें हम बेस ईयर क्वांटिटी को इम्पॉर्टेंस देते हैं, दैट इज़ Q0. और जो पास्चे मेथड है उसमें हम करंट ईयर क्वांटिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं. अब फिर से देखिए. इन केस ऑफ लेस्पियर इंडेक्स नंबर द फॉर्मूला विल बी
दैट इज़ दिस इज़ PL इसको नाम दिया जा रहा है क्योंकि लेस्पियर का मेथड है, अदरवाइज़ हम इसको P01 ही लिखते हैं क्योंकि इंडेक्स नंबर है। सो सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको पता है ये 100 से हमें मल्टीप्लाई करना क्योंकि ये परसेंटेज में आता है। हम परसेंटेज मेंशन नहीं करते बट दिस इज़ कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। अब अगर हम पार्शियल मेथड देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, P1Q1 बाय सिग्मा P0Q1 मीन्स हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बच्चे वो हम Q1 को दे रहे हैं। Q1 क्या है आपकी, दिस इज़ करंट ईयर क्वांटिटी, और इससे पहले वाला जो था दैट इज़ लेस्पियर मेथड, इसमें हम इम्पोर्टेंस दे रहे थे Q0 की। Q0 मीन्स बेस ईयर क्वांटिटी। यहाँ पर आपके पास कुछ और वर्ड्स भी हैं, इनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज सेम एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक CPI से रिलेटेड है, और CPI कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग लेस्पियर्स मैथड। सिमिलरली पार्शियस इंडेक्स नंबर Dorbish-Bolle index number is the arithmetic mean of Lespiers and Pasch's index number। बच्चे ये आपके सिलेबस में नहीं है, Dorbish-Bolle इंडेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, सो ये सेंटेंस आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। So far we have completed two methods. One is the Lespier method and second is the Pasch method. Next topic, this is about Fisher's ideal index number. This is very very important. इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। दिस फार्मूला इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पाश्चेस इंडेक्स नंबर। ज्योमेट्रिक मीन भी आपके सिलेबस में नहीं है, सो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा फार्मूला यूज़ करोगे। आपने देखा दोनों को उसने कंपेयर कर दिया, दोनों को कंबाइंड कर दिया। अगर हम पहला पोर्शन देखें, दिस इज सिग्मा P1Q0 बाय सिग्मा P0Q0। बच्चे मैं एक बार दोबारा करूँगी इसको। चलिए बेटा फिर से देखिए, आपके पास सिग्मा P1Q0 बाय P0Q0, ये पोर्शन आपका क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 हम 2 बार करेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा PL है, मतलब लेस्पियर मैथड है। और अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये हमारा पाश्चेस मैथड है। 100 स्क्वायर रूट से बाहर है, अगर हम दोनों को 100 देना चाहें तो ये आपका कंप्लीट PL, ये आपका कंप्लीट PP, और उस सब का स्क्वायर रूट। मीन्स हम जब फिशर्स मैथड यूज़ करेंगे, और हमने अब किसी क्वेश्चन में लेस्पियर और पाश्चे दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं और हमें फिशर्स मेथड यूज़ करना है, तो बच्चे हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को भी सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ एक छोटा सा है आपके पास, ये ध्यान से देखिए। दिस इज़ लेस्पियर्स मैथड। इन केस ऑफ लेस्पियर्स मैथड P01 is sigma P1Q0 by sigma P0, means the importance is given to base year quantity. In case of Pasch's method, this is sigma P1Q1 by sigma P0Q1 into 100, means the importance is given to the current year quantity. In case of Fisher's method, this is P1Q0 by P0Q1, then P1Q1, this is P0Q1। नहीं बच्चे, यहाँ आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ। इट शुड बी P0Q0। आपका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1Q0 बाय सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1। मीन्स ये हमारा हो गया लेस्पियर्स मैथड, लेस्पियर्स मैथड, ये हो गया हमारा पाश्चेस मैथड, मीन्स L plus P by 2. Fisher's method is considered as ideal because it considers all the values, that is base year quantity as well as current year quantity. Means Fisher method ज़्यादा ideal है
as compared to the Lespier and Paasches method, because Lespier method only gives importance to the base year quantity, while in Paasches method the इम्पॉर्टेंस इज़ गिवन ओनली टू द करंट ईयर। देखो बेटे, टाइम के साथ साथ हमारा परचेजिंग भी कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे आज से 10 साल पहले हम लोग रिफ़ाइंड यूज़ करते थे ज़्यादा, लेकिन अब हम रिफ़ाइंड कम यूज़ करते हैं। हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं या हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, मतलब फ़र्क पड़ गया। पहले हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते थे, सोयाबीन का ऑयल हम यूज़ करते थे, लेकिन अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम राइस ब्रान ज़्यादा यूज़ करते हैं, सफोला ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मींस अगर हम ये सोचें कि बेस ईयर क्वांटिटी को ही लेकर चलें तो इससे आंसर हमारा गलत हो सकता है। तो फिशर ने क्या किया, दोनों ही ईयर्स की क्वांटिटी को उससे इम्पॉर्टेंस दी, मीन्स Q0 as well as Q1. So this is all about the three formulas. Now look at one example. This is a question. Commodity, 4 commodities are given. Base year price and base year quantities are given. So base year price will be P0, base year quantity will be Q0, current year price P1, current year quantity Q1. अब आपको क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है बच्चे, आपको फाइंड आउट करना है लेस्पियर मेथड। आप याद करिए, लेस्पियर मेथड में आपका था सिग्मा P1 Q0। इसका मतलब P1 Q0, हम एक और कॉलम बना लेंगे, P1 Q0, P1 is 5, Q0 is 25, so it will be 125। इसी तरह से फिर हमें कॉलम चाहिए सिग्मा P0 Q0, मीन्स हम P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम बना लेंगे। चलिए देखें इसको। दिस इज P0 Q0, P1 P0 Q0, P1 Q0। Q0 Q0 की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? लेस्पियर मेथड में पड़ रही है। P0 Q1, P1 Q1 की कहाँ पड़ेगी? पाश्चे मेथड में। आपने पढ़ा कि हमें बेस ईयर क्वांटिटी को इम्पॉर्टेंस हम देते हैं लेस्पियर मेथड में, और करंट ईयर क्वांटिटी को देते हैं हम पाश्चे मेथड में, और दोनों की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है? फिशर मेथड में। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई, बस अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करिए। बच्चे आपने निकाला कैसे था, ये ध्यान से देखो। दिस इज P0 Q0, P0 Q0 हमारा कैसे आया? P0 Q0 कैसे आएगा? दिस इज 3 इंटू 25 75, 1 इंटू 50 50, 2 इंटू 30 60, 5 इंटू 15 75। इसी तरह से बाकी सारे भी हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए, दिस इज लेस्पियर इंडेक्स नंबर, recall the formula. This is sigma P1 into Q0 by sigma P0 into Q0 multiplied by 100. This is 151.92. Similarly for Paasches, यहाँ पर वो L लगा रहा था लेस्पियर के लिए, यहाँ P लगाया उसने पाश्चे के लिए, वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास Paasches मेथड में भी इंडेक्स नंबर आ गया। बच्चे ध्यान रखना, आंसर आपका वेरी करेगा। The answer, the index number varies with the different formulas. As you use the different formulas, you will have a different answer. Now, how to calculate Fisher's method? This is Fisher's method. As we have already discussed, हम सीधा ही लेस्पियर मेथड की वैल्यूज़ को और पाश्चेस की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करें और उसके बाद हम आंसर निकालें। बच्चे, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आंसर को अप्रॉक्सीमेट करके भी निकाल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इतनी वैल्यू भी छोड़ दोगे तो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर डिडक्ट होगा। सो यू कैन मैनेज। वैसे तो आपके पास सफिशेंट टाइम है, आप सीख सकते हो। अपने प्रीवियस क्लासेस में 6-7 क्लास में किया था, थोड़ा सा रिकॉल करिए
you will be able to understand how square roots are calculated. So with this topic is over. Now, second topic, this is weighted average of price relative method. बच्चे, recall your memory. When we calculated unweighted index numbers, we used two methods. One is simple aggregatives and second is price relative method, that is averages of price relative. और बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर किया है. हमने पहले निकाला था weighted aggregates, मीन्स weighted index number निकाल रहे थे हम by using the simple aggregate method. उसमें हमने तीन मेथड किए, लेस्पेयर मेथड, पाशे मेथड और फिशर्स मेथड. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव. मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारे पास रिलेटिव टर्म आ जाती है, इसका मतलब हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी. और डब्ल्यू हमें क्यों चाहिए? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग वेटेड. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. व्हाट इज़ आर? दिस इज़ P1 बाई P0 इंटू 100. अपनी मेमोरी को रिकॉल करिए, हमने इसको कैलकुलेट किया था. अब हम क्या करेंगे, सभी जगह पर हम पहले R निकालेंगे, मतलब हम अपने क्वेश्चन में एक कॉलम बनाएंगे नया, दैट इज़ R. आपके पास क्या क्या गिवन होगा? आपके पास तीन चीज़ें गिवन होंगी, W, P0, P1. W की हमें ज़रूरत पड़ेगी. P1 और P0 के लिए इन दोनों की हेल्प से पहले हम R फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम एक और कॉलम बनाएंगे R. फिर वो जो R वैल्यूज़ आएंगी उसको हम W से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी नीड RW. क्लियर? सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? सिग्मा RW बाय सिग्मा W. Now move to the next topic. We have an example. This is W. What is given? Items are given, weights are given, base year price, that is P0 is given, that P1 is given. We want to calculate weighted index number by price relative method, means we need to calculate R. What is the formula to R? This is the ratio between current year price and base year price multiplied by 100. This is 4 by 2 into 100, this is 200. Then 6 by 5 into 100, 120, so and so. Next, this is RW. This is 200 multiplied by 40. This is 8000. Then 120 multiplied by 30. This is 3600, so and so. Next, find out sigma RW, that is the summation of RW divided by sigma W. We have 156 as the answer. और आपको पता है कि ये 100 से जितना ज़्यादा आता है उतना ये इंक्रीज शो करता है इन करंट ईयर प्राइस. सो what can we say about we can say from this answer that there is 56% increase in current year prices as compared to the base year price. Got the point? This is about the construction of weighted index numbers. So dear students, I hope you are capable to understand the topic. So dear students, revise the topics properly, do the textual questions and please send me your doubts if you have any. Dear students, do your work properly, stay home, stay safe, enjoy your day and please be particular about your studies. Have a wonderful day. Goodbye, dear students.